الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. حاضرین، جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس چیز سے متعلق اسے یقین ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اس چیز سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اس میں شکوک و شبہات کا شکار رہ سکتا ہے. اور اس کی تصدیق حدیث سے بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، سنی سنائی بات دیکھی جیسی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کا کرا دھرا بتلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں نہیں پھینکی تھی،
لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ گائے کی عبادت کر رہی ہے، لوگوں نے بچڑوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دی اور وہ ساری کی ساری تختیاں ٹوٹ گئی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کیا تمہیں مجھ پر ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو لو، ان پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر ٹکڑے کو پہاڑ پر رکھ دو، ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گی، اور جان لو اللہ رب العالمین کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس بشری اور فطری تقاضے کے باوجود ایک مسلمان کا اس بات پر یقین ہے، کسی مسلمان نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن ایک مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ کوئی مسلمان کسی فرشتے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ ایک انسان قیامت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن قیامت سے متعلق اس کا یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کی پہلی سور سے پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، اور دوسری پھونک سے پوری دنیا کے تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ جو مر چکے ہیں وہ قبروں سے نکل کر کے میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے۔ ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے۔ قبر کی عذاب کو کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ان تمام غیبی امور پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے عذاب قبر نہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ غیب کے امور میں سے میرے بھائی اور دوستو ایک قیامت ہے۔ قیامت کا تعلق بھی غیب سے ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے قیامت قائم ہوگی، اور حدیث و قرآن سے بھی ثابت ہے قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع سے قبل کچھ علامات بتلائے ہیں، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، جن کے آ جانے کے بعد ایک مسلمان کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ جن علاماتوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اس میں سے ایک علامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اللہ کے آخری نبی کا اس دنیا کے اندر آ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَزَمَّ السَّبَابَ وَالْوُسْطَىٰ، کہ میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں۔ وَزَمَّ السَّبَابَ وَالْوُسْطَىٰ، اللہ کے نبی نے انگشت شہادت اور درمیانی والی انگلی کو ملا کر کے فرمایا کہ میری قیامت اس طرح سے ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اپنی دونوں انگلیوں کو ملائیں، انگلیوں کو ملانے کے بعد آپ دیکھیں دونوں انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے
वही दुनिया है। दुनिया नबी की पैदाइश के बाद उतनी ही दुनिया बाकी है। और एक दूसरे रिवायत के अंदर है, औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, आप चमड़े के खेमे के अंदर मौजूद थे। मैं जब गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, औफ बिन मालिक अंदर आ जाओ। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अंदर जाते हैं, खेमे के अंदर पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यहफज़ खिलालन सित्ता बैन यदिस्साअ मिनहा मौती, क्या औफ बिन मालिक कयामत से पहले 6 निशानियों को याद रखना, उसमें से एक निशानी मेरी मौत है। यानी अल्लाह के नबी की पैदाइश भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से चले जाना, अल्लाह के नबी का वफात हो जाना, ये भी कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। और कयामत की ये दोनों निशानियां मेरे भाई और दोस्तों पूरी हो चुकी हैं। कयामत की निशानियों में से एक निशानी बैतुल मुक़द्दस की फतह है। कयामत के कायम होने से पहले बैतुल मुक़द्दस को फतह किया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन का शहर है और उसकी दारुल हुकूमत भी है। फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस ये मुसलमानों के नजदीक भी मुक़द्दस है, यहूदियों के नजदीक भी मुक़द्दस है, ईसाइयों के नजदीक भी मुक़द्दस है। बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे मज़ाहिब को मानने वालों के नजदीक बैतुल मुक़द्दस अहम है। लेकिन जब कयामत कायम होगी, उससे पहले बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया जाएगा। हदीस की रूह से और तारीख की रूह से अगर मैं आपके सामने बयान करूं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सन 18 हिजरी के अंदर मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उसके बाद 1099 ईस्वी में दोबारा यहूदियों और ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1187 ईस्वी के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर आज बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है। आज बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है। लेकिन याद रखो मेरे भाई और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक कयामत के कायम होने से पहले बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा वगैरह का पूरा एरिया मुसलमानों के कब्जे में आएगा और मुसलमानों से फतह करेंगे। मालूम हुआ जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा तो एक मुसलमान को यह अंदाजा कर लेना चाहिए कि कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी आ चुकी है, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पेश हो चुकी है। इसी तरह से कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि फितनों का ज़ुहूर होगा। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने वाक़े होंगे। हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़तइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। लोगों आमाले सालिहा के लिए जल्दी करो, लोगों नेक काम करने के लिए जल्दी करो, इसलिए कि अंधेरी रात के मानिंद कितने वाक़े होंगे। आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। यबीउ रजुलु दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, आदमी अपने दीन को, आदमी अपने ईमान को दुनिया के चंद सामानों की वजह से बेच देगा। मेरे भाई और दोस्तों, कयामत की ये निशानी पूरी हो चुकी है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इज्जत की खातिर, शोहरत की खातिर, कुर्सियों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं। आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, खासतौर से मुस्लिम नेताओं को देख लीजिए, अपनी सीट बचाने के लिए मेरे भाई और दोस्तों मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में जाने के बाद अपना माथा टेकते हैं, अपने माथे को उसके सामने झुकाते हैं, मूर्तियों के सामने। एक मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए, उसकी पूरी दुनिया खराब हो जाए लेकिन कभी भी एक मुसलमान को तौहीद से समझौता नहीं करना चाहिए, एक मुसलमान को अपने ईमान से समझौता नहीं करना चाहिए। जाने दीजिए अपनी सीटें, लेकिन कभी किसी के सामने हरगिज़ मत झुकिए। लेकिन आज मुसलमान अपनी कुर्सी की खातिर गैरों के सामने अपने सर को झुका रहा है, गैरों के सामने अपने सर को टेक रहा है। और मुसलमानों का इस तरह से टेकना, मुसलमानों का उनके त्योहारों में जाकर के बधाई देना, ये इस बात की दलील है कि कयामत बहुत ज्यादा करीब है। एक मर्तबा किसी ने शेख मोहसिन अल-अब्बाद रहमहुल्लाह से सवाल किया
क्या है शेख मोहसिन अल-अब्बाद, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि अंधेरी रात के मानिंद कितने वाक़े होंगे, क्या ये वही दौर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई फरमाई? शेख अब्दुल मोहसिन अल-अब्बाद रहमहुल्लाह ने कहा कि इसका हकीकी इल्म तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, लेकिन आज के इस दौर में मुसलमानों के हालात को देख करके यह अंदाजा होता है कि जिस दौर से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी वो यही दौर है। आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में जो गिर रहे हैं उसका एक सबब यह है कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के हिदायत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के फरमादार के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको मालूम हुआ जहां भी फितने वाक़े हों और लोगों का, मुसलमानों का काफिरों के साथ जाकर के मिल जाना, उनके इबादत गाहों में शरीक होना, उनके इबादतों में शरीक होना, यह इस बात की दलील है कि कयामत बहुत ज्यादा करीब है। कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि हर आने वाला दिन पहले दिन से बुरा होगा। हर आने वाला दिन पहले दिन से बुरा होगा। हदीस के अंदर आता है, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन अनस बिन मालिक के पास गए, फशकौना इलैहि मा नल्का मिनल हज्जाज, हज्जाज की तरफ से जो कुछ मुसीबतें सहाबे किराम को पहुंच रही थी उसका शिकवा करने लगे अनस बिन मालिक से। अनस बिन मालिक ने फरमाया, इस्बिरू फइन्नहु लयाति अलैकुम ज़मानुन इल्ला अल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु हत्ता तल्क़ौ रब्बकुम। ऐ सहाबे किराम, तुम सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन पहले दिन से बुरा होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। और ये चीज मैंने तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज्जाज की जब हुकूमत थी, हज्जाज की हुकूमत में मुसलमानों को बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि सहाबे किराम बिल्कुल परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई, मुसलमानों में खुशहाली आ गई, मुसलमान अमन व आशकी की जिंदगी जीने लगे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, जो ये बात हदीस के अंदर कही गई कि हर आने वाला दिन पहले दिन से बुरा होगा, यह हदीस बिल्कुल सही है, यानी अक्सर बेशतर ऐसे ही होगा। लेकिन कभी कभी इसके बरअक्स भी हो सकता है, जैसा कि हज्जाज की हुकूमत के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज की जब हुकूमत आई तो उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत के अंदर अमन व आशकी का माहौल था। इसी तरह से अगर आज की हुकूमत के पेश नजर हम बात करें, दिमश्क के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, इससे पहले बशर अल असद की हुकूमत थी। बशर अल असद ने मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर किया, मुसलमानों को लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारा, सुन्नी मुसलमानों को हिलाको बर्बाद किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुन्नी मुसलमानों की हुकूमत आई, सुन्नी मुसलमान जो जेलों के अंदर मौजूद थे वो सारे के सारे बाहर आ गए। आज मुल्क शाम के अंदर अमन आशकी का माहौल है, मुल्क शाम के लोग खुश खुर्रम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि आने वाला कल आज से बेहतर हो, लेकिन अक्सर बेशतर ऐसे ही होगा कि आने वाला कल पहले दिन से बुरा होगा। आप में से अगर सवाल किया जाए तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे पहले का दौर ठीक था, पहले के दौर में बुराइयां कम थी, आज के दौर में बुराइयां ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इस तरह के हालात का बदलना, आए दिन दिनों का बुरा होना इस बात की दलील है कि कयामत बहुत ज्यादा करीब है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, झूठे नबियों और दज्जालों का ज़ुहूर होगा। हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तख्ततिला फ़िअतान अज़ीमतान तकूनु बैनहुमा मक़तलतुन अज़ीमा दावाहुमा वाहिदा हत्ता युबअसा दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबुन मिन सलासीन। ये लोगों सुन लो, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जहां तक कि दो गिरोहों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी, और उन दोनों गिरोहों में से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। यहाँ तक कि 30 के करीब झूठे दज्जाल इस दुनिया के अंदर आएंगे। झूठे ऐसे लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे और आपके सामने ये बयान करेंगे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, लिहाजा मेरे हाथ पर बैअत करो, मुझे मानो, मेरी इताअत करो। और इस चीज का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर ही हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं,
उस वक्त भी चंद लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया था। मुसैलमा कज्जाब और असवद अंसी, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो नबी की मौजूदगी में नबूवत का दावा किए थे और ये कह रहे थे कि मैं नबी हूं। लेकिन अहद रिसालत के अंदर ही मुसैलमा कज्जाब को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। जंग यमामा के अंदर उसके काम को तमाम कर दिया। इसी तरह से असवद अंसी को भी मुसलमानों ने अहद सिद्दीकी के अंदर कत्ल कर दिया था। उसके बाद भी एक औरत थी जिसका नाम सज्जाह बिन्त हारिस था, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया और वो कहने लगी कि मैं अल्लाह की नबी हूँ। और उसने झूठे नबी मुसैलमा कज्जाब से शादी भी कर ली थी। लेकिन जब मुसैलमा कज्जाब को जंग इमामा के अंदर कत्ल किया गया तो ये डर गई। डरने के बाद दोबारा इस्लाम को कबूल कर ली और इस्लाम को कबूल करने के बाद पूरी जिंदगी मुसलमानों के साथ रही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करती रही। इसी तरह से कबीले असद का एक शख्स जिसका नाम तुलैहा था, तुलैहा नामी शख्स ने भी नबूवत का दावा किया और जब इसको तुलैहा नामी शख्स के साथियों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा और इसको लगा कि अब इसकी दाल गलने वाली नहीं है, ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर के मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद मेरे भाइयों और दोस्तों पूरी जिंदगी मुसलमानों के साथ रहा, यहाँ तक कि वो जंगों के अंदर भी शरीक होता रहा और उसकी मौत जो हुई शहादत की मौत हुई। इसी तरह से मुख्तार बिन अबी उबैद सख्फी ने नबूवत का दावा किया। खिलाफत राशिदा के बाद भी बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कादियान के अंदर नबूवत का दावा किया। गर्चे इस बंदे ने अपनी हीला साजियों की वजह से बहुत सारे लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गया, लेकिन वक्त के जो उलमा थे उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खारिज अल इस्लाम करार दिया और उसके मानने वालों को निजात से महरूम करार दिया। तो इस तरह के लोगों का इस दुनिया के अंदर आना और नबूवत का दावा करना ये कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म को उठा लिया जाएगा। यहाँ इल्म से मुराद शरई इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म है। कयामत कायम होने से पहले इस दुनिया के अंदर उलमा मौजूद नहीं होंगे। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यक़बिज़ुल इल्मा इंतज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद, कि अल्लाह ताला कयामत के करीब इल्म को उठा लेगा और अल्लाह ताला उलमा के सीनों से इल्म को नहीं उठाएगा बल्कि उलमा को वफात दे करके इल्म को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम यबक़ आलिमुन, यहाँ तक कि जब इस रूए जमीन पर कोई आलिम दीन नहीं होगा, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलू, जाहिलों से सवाल करेंगे। फाफ्तू, वो जाहिल हर सवाल का जवाब देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। मेरे भाई और दोस्तों कयामत की ये निशानी अभी तकरीबन पूरी नहीं हुई है, लेकिन कयामत की ये निशानी धीरे धीरे पूरी हो रही है। आप देखेंगे लॉकडाउन का जो वक्त गुजरा है उसमें हजारों बड़े उलमा इस दुनिया से रुखसत हो गए। आए दिन ये खबर आती है बड़े बड़े उलमा रुखसत हो रहे हैं, इस दुनिया से चले जा रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि कयामत बहुत ज्यादा करीब है। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि मिनिस्टरात इस्साअती अय्युल तमसल इल्म इंदल असागिर, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग इल्म दीन को बिदअतियों से सीखेंगे, उन लोगों से इल्म हासिल करेंगे जो आलिम दीन नहीं होंगे। इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे भाई और दोस्तों जो खुद को अल्लामा समझते हैं, खुद को फहामा समझते हैं, खुद को हक्काका और दक्काका समझते हैं। उनकी हालत ये है कि शरीयत के शील से भी वाकिफ नहीं है, कुरान और हदीस के जो वसूल हैं उन वसूलों से वो वाकिफ नहीं है। उनकी जबान से ये पता चलता है कि वो जाहिल है, लेकिन वो अपने आप को जाहिल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को उलमा से बड़ा समझ रहे हैं, अपने आप को अल्लामा फहामा हक्काका दक्काका साबित करने के लिए एड़ी से चोटी लगा दे रहे हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ऐसे लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उलमाए किराम इस दुनिया के अंदर अभी मौजूद है। मैं आपको बताऊं, एक इंसान है यूट्यूब पर बहुत चलता है, हमारे मुसलमान उसे बहुत ज्यादा सुनते हैं। हमारे मुसलमानों को लगता है कि वो आलिम दीन है, लेकिन हकीकत में वो आलिम दीन नहीं बर्दर है। उनका नाम क्या है? एडवोकेट फैज।
एडवोकेट फैज नाम है उनका। मुसलमान बड़े दिलजमी से उनको सुनते हैं। जो लोग उनको नहीं जानते कि वो बर्बर है, किताब और सुन्नत के इल्म से ना आशना है, उनको फॉलो करते हैं और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मेरे भाई और दोस्तों हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों से हम सावधान नहीं रहेंगे तो यकीन माने हमारा ईमान भी बिक सकता है, हमारा दीन भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे इल्म को आपके सामने ला रहे हैं जो इल्म कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हाँ, उनकी जबान बहुत मीठी होती है, उनकी जुबान बहुत प्यारी होती है, उनकी जुबान से लोग मुतासिर होकर के उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास इल्म नहीं होता है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, आप एडवोकेट फैज को ना सुने, आप डॉक्टर असरार को ना सुने, इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा हैं, उनको हरगिज़ मत सुने, वरना आप सुनेंगे तो आपका ईमान भी जा सकता है। ये ऐसे लोग वहदतुल वजूद के कायल हैं, ऐसे लोग वहदतुल वजूद के कायल हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है, जबकि मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला सातवें आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है और उस अर्श से अल्लाह ताला पूरी दुनिया को चलाता है। पूरी दुनिया के जर्रा जर्रा का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास रखता है। इसी तरह से कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि अचानकपन के अमवात वाक़े होंगे। आदमी चलता फिरता रहेगा, गिरेगा, मर जाएगा। हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना मिन अशरातिस साअती अन यज़हरा मौतुल फजाअ, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अचानकपन का मौत कायम होगा। मेरे भाई और दोस्तों, आज के इस दौर में इंसान हार्ट अटैक की वजह से अचानक मर जाता है। आदमी घर से निकलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह की अमवात का वाक़े होना ये इस बात की दलील है कि कयामत की एक निशानी पूरी हो गई और कयामत बहुत ज्यादा नजदीक है। इसी तरह से कयामत की निशानियों में से एक और निशानी जिसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जब कयामत कायम होगी उससे पहले बच्चियों की बहुत ज्यादा पैदाइश होगी, बच्चियों की बहुत ज्यादा पैदाइश होगी, औरतें बहुत ज्यादा होंगी। हदीस के अंदर आता है, यक़ुल्लुर रिजाल व यक्सुरुन निसा, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें ज्यादा हो जाएंगी, यहाँ तक कि 50-50 औरतों का सिर्फ एक मर्द निगरान होगा, एक मर्द 50-50 औरतों की देखरेख करेगा। अहले इल्म बयान करते हैं इसके दो असबाब हैं। पहला सबब यह है कि बच्चियों की पैदाइश ही ज्यादा होगी। दूसरा सबब यह है कि आखिरी जमाने के अंदर इतनी जंगें होंगी कि कसीर तादाद में मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा, उनको हिलाको बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से औरतें कम हो जाएंगी और औरतें ज्यादा हो जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे। तो औरतों का ज्यादा होना भी ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरह से कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि नाअहल लोग मनसब पर फायज हो जाएंगे। एक मर्तबा एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? आपने फरमाया, जब अमानत को जाये कर दी जाएगी तो कयामत आएगी। उसने फरमाया, अरे अल्लाह के नबी, अमानत कैसे जाये होगी? आपने फरमाया, इदा तुउस्सिल अम्रु लिगैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब मनसब को, वहदे को ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा जो उसके अहल नहीं होंगे, तो समझ लेना कयामत बहुत ज्यादा करीब है। आज बड़े बड़े पोस्ट को आप देख लीजिए, ऐसे घटिया लोग उस पर फायज हैं कि अल्लाह की पनाह। वो लोग उस सीट के लायक नहीं होते, लेकिन उस सीट पर बराजमान है, जो इस बात की दलील है कि कयामत बहुत ज्यादा करीब है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलामात हैं मेरे भाई और दोस्तों कयामत के। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर मौका मिला तो उन अलामात को आपके सामने तस्ज़बान करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। इन्नल्लाहा युसल्लूना अलैकुम
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جنة أكبر. اللہ اکبر